आपने लॉ किया है, जी. एक्टिंग कैसे, इंटरेस्ट कैसे आई? I was always interested in acting, but my parents had absolutely no, they were not at all interested that I should not even think about this field. Why haven't you married yet? Haven't found the right guy. Haven't had time actually. Haven't had time. No, I haven't had time. आप बेसिकली बॉम्बे की हैं? जी नहीं. कहाँ से? I'm from Pune. Pune. जी. Another one from Pune. Oh, you're also from Pune? Yeah. See, the Pune guys are good, yeah. Yeah, Pune guys go for it. In fact, मंदार अभी एयरपोर्ट से डायरेक्टली हमारे स्टूडियो में आए. Okay. Great. अच्छा, how did you get your first break? आपने मॉडलिंग भी काफी की है. जी हाँ, काफी तो नहीं, बट जो की है वो इतना टू बी नोटिस, हाँ ज्यादा नोटिस हो गई है कि ऐसे लगता है कि मैं एक्चुअली आई हैव डन अ हैंडफुल ऑफ एड्स इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल आई पॉसिबली हैव डन नथिंग. सो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट एड? माय फर्स्ट एड, वेल माय फर्स्ट एड वाज made by one of my friend's husbands and I needed the break and he needed somebody with long hair and I had hair which was almost down to my knees, so I got that break. But that film never got released. किस चीज Yeah, की? it was a velvet shampoo, something, but years back, which never got released. So that was my first break. But after that, it was very difficult. बहुत मुश्किल था. Like I told you, I didn't. But if that never got released, how was that your break? Nobody saw you. Yeah, nobody saw me, but that was my first commercial. Then, you know. Okay, what was the how? पहला जो लोगों के नजर में आया वो कैसे मिला? पहला जो लोगों के नजर में आया actually, which really made an impression actually, was the De Beers Diamond ad. वो मुझे मिस्टर महेश मथाई ने टेस्ट के लिए बुलाया था. He was sure that I could do it. He thought I was a performer. He needed someone who looked like me. तो उन्होंने मुझे बुलाया और as usual everybody was against me. The agency was against me. The client was against me. And except for Mahesh, nobody believed that I could do it. They didn't think that I would fit the mold, whatever the mold is. And Mahesh was convinced that I could do it, so he just said, I'm going to shoot with her anyway. And after the first two shots, जो client था वो De Beers से था England में, he came to me and he shook my hand and he said, I am so sorry I disagreed with Mahesh. You've done a great job, you're looking the part, and I want to thank Mahesh for sticking to his guns. So, And rest is history. Yeah, well, I don't know about that, but आपकी नजर में what is your ideal role? कविता कपूर के लिए वो सबसे अच्छा कौन सा रोल अदा कर सकेगी? कर सकूंगी, I don't know what I'll be able to do. I hope that whatever I'm given, I can do up to beyond expectation. And well, I guess I'll know when it comes my way. साज कैसे मिला? नीना ने मुझे एरिक्सन में देखा था और एरिक्सन मोबाइल फोन की जो एड थी, तो उसको वो लुक पसंद आया था. तो उसने मुझे बुलाया 10 एपिसोड के लिए कि हमारा एक छोटा सा रोल है 10 एपिसोड का, तो आप करेंगी. So I was very thrilled because I was a big fan of Nina's for many years. I couldn't believe that Nina Gupta's called me up, for a role, and so I was very excited. And I didn't ask her any details. I just said what time and where, and I was there. I was shooting with her 10 days later. So 10 episode. It got extended, I guess. So I don't know. I went there for 10 episodes and it worked well, I guess. And साज का experience कैसा है? Well, actually. इन बिगिनिंग में बहुत फ्राइटनिंग था. मैं वो एक्साइटमेंट बहुत मतलब भय में बदल गई बिकॉज व्हेन आई रीच द सेट जो सारे लोग थे वो बहुत सीनियर थे. मीन मिस्टर कमलजीत, ही इज अ बिग स्टार एंड ही वाज द बिगेस्ट थिंग ऑन इन टेलीविजन. नीना गुप्ता, शी इज television and film great artist and in the league of Smita Patil and Shamara Azmi. I was petrified. I was really nervous. क्या कविता कपूर साज की उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकती? Can you ever have an affair with a married man? Can I? Would you? In principle, no. But दिल है कि मानता नहीं. No, it's like I don't know if a situation ever arose like that. It's very easy. Like I met somebody who's just recently, I'm having all kinds of experiences after meeting in SAS. I met this lady who's been married for about 10, 12 years, and
she's very independent, and she on her right, in her own right, is a celebrity. Her husband is a celebrity, and Saas seems to have started a big debate everywhere, you know. So she said to me, she said, "Ke I'm very independent. I'm cool. I don't need my husband to survive. But अगर ऐसा हो गया कि my husband does go out and have an affair, what can I actually do?" She says, "I don't know if I have the strength to walk out on him. I'm not financially dependent on him, but he is the center of my existence. I mean, he's the father of my children, and I'm emotionally dependent on him. So, can I walk out on him?" So she said, "It's on TV. It looks very good, you know, somebody can walk out on someone." And I said to myself, I said, she's such an independent woman, and you know, she still has that feeling, you know, of will I be able to walk out on him, etc. So I thought to myself that you can never really judge anything actually unless you're actually in it. So I've had enough of my saying, no, I'll never do it, and I can't, and I won't, but I don't know. जाने से पहले मंदार, आप अपनी इंग्लिश एल्बम से एक गाना कविता जी के लिए गा सकते हैं? Okay, as I said, I like sad songs. Let me try and sing. Yeah, Light Eyes, so I think I'll just sing the paragraph which suggests Okay. that. I'm tired of being in love with someone who is always scared. You just go on living your life and put up a show that you never cared. If I cry, this world would laugh. My friends would say, stop being a clown. Eyes have got more colors than brown. Thank you so much, Mandar. Kavita, thank you so much for taking time out and coming to our show, and all the very best to both of you. आपकी तारीफ में मोहन कपूर आपका स्वागत करता है और एक वादा करता है कि आज का ये शो हर हफ्ते की तरह एक बार फिर आपको मनोरंजन की बुलंदियां पार कराएगा। आइए आज के पहले गेस्ट से आपका तारुफ कराएं। इससे तारुफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो शख्स हैं, वो हस्ती हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया डेफिनेशन दिया है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, द ग्रेट जसपाल भट्टी। गुड इवनिंग सर, आइए। जसपाल साहब, एक तो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए जो निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बिल्कुल, मुझे काम नहीं था, मैं तो बिल्कुल बिना काम के बैठा हुआ था। शुक्रिया आपका करना चाहिए कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, एक बात बताइए, आप पंजाब में गवर्नमेंट में काम करते थे, राइट? मैं पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव काम करता था। तो ये फिल्मों का, टीवी का, ये कैसे आप लिखने में बहुत दिलचस्पी रखते हो? हाँ, कैसे शुरू कैसे हुआ इस दौर? शुरू से ही पहले मुझे शौक था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। तो मुझे एडमिशन भी मिल गई, मैंने इंजीनियरिंग कर भी ली, कंप्लीट भी कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की तो मेरा इंजीनियरिंग में शौक ही ख़त्म हो गया। पता नहीं अपना एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है या क्या है, क्योंकि जो डॉक्टर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन जाता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो वकील बन जाता है। तो इसलिए मैं शायद इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बाद में आर्टिस्ट बन गया। एक बात बताइए, आपने पॉलिटिकल सटायर ये जो एक दौर शुरू किया है, एंड यू बीन वन ऑफ द ओनली वंस हु बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली, ये कैसे शुरू हुआ? आप गवर्नमेंट में रह चुके हैं, फिर भी आपने पॉलिटिकल सटायर करने की चाह रखी? वो क्या है कि मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम ह्यूमर है, जो मैक्सिमम कॉमेडी है, वो आजकल है ही पॉलिटिशियंस में। तो वो हरकतें ऐसे करती हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप ही कॉमेडी निकलती रहती है। तो इसलिए मेरी ये ज़्यादा चॉइस होती है कि पॉलिटिशियंस पे ही ह्यूमर किया जाए। पहले मैं कार्टूनिस्ट भी था, मैंने 5 साल कार्टूनिंग की है बाकायदा। मेरे ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है चंडीगढ़ का, तो फ्रंट पेज पे एडिटोरियल कार्टूनिंग मैंने 5 साल की है। एक बुक आई थी पेंगुइन की, इंडियन कार्टून्स, उसमें आर के लक्ष्मण, अबू अकरम, उसमें मेरे भी कार्टून्स हैं। दिल्ली के कितने कार्टून्स की आपने कार्टून्स बनाए? वो डे टू डे जो भी होता रहता था सबके चलते रहते थे। अच्छा, आप ये एक बहुत एक तरह से अच्छा भी नहीं है कि लोग सरदार भाइयों पर बहुत जोक्स करते हैं। आप एक ऐसे शख्स हैं जो कॉमेडी करते हुए अपने आप पर जोक्स भी बहुत क्रैक करते हैं। तो ये आपको कभी खटकता नहीं कि मैं इनकरेज कर रहा हूं लोगों को ये करने के लिए?
नहीं, मैं तो एज वन ऑफ द करेक्टर होता हूँ, लेकिन जो पन होता है, जो जोक होता है, जो स्टायर होता है, वो तो सिस्टम पे होता है ना, वो तो सरदारों पे नहीं होता ना, वो तो एक सिस्टम पे होता है, चाहे वो डॉरी सिस्टम हो, चाहे वो करप्शन हो, हवाला हो, इन चीज़ों पे होता है। मैं तो एक वन ऑफ द करेक्टर उसमें प्ले कर रहा होता हूँ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इस देश के, तो आपके कैबिनेट में कौन कौन से एक्टर आप लेते और क्या पोर्टफोलियो देते? स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।